Assalamu alaikum, this is me Paras Sheikh and you are watching Paras Sheikh Official. اگر آپ اس لیکچر میں آ گئے ہیں تو آپ اس کو اللہ کی طرف سے نشانی سمجھیں، کیونکہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں ہدایت انہی کو دیتا ہوں جو کوشش کرتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، تو ہم نے جو ہے پچھلی کلاسز میں کور کر لیے تھے، ان کا جو ہے میں نے خلاصہ بھی آپ کو، پہلی کلاس کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو دوسری کلاس میں دے دیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی نا ویڈیو لمبی ہو گئی تھی۔ تو آج جو ہے میں کوئی خلاصہ نہیں دے رہی۔ اگر آپ نے وہ پہلے والے لیکچرز نہیں سنے ہیں تو آئی بٹن پہ کلک کر کے پہلے وہ آپ دیکھ لیں۔ دوسری کلاسز میں نے پہلی کلاسز کا بھی خلاصہ دے دیا ہے۔ اچھا جی، چلیں آج سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا پڑھا تھا؟ ایسے وربز پڑھے تھے جن کی کوئی خاص شکلیں نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے ضرب پڑھا تھا۔ اب ضرب پڑھا تھا، ضرب سے ہم نے اس کا پاسٹ بھی بنایا تھا، پاسٹ کے پیسو وائز بھی بنایا تھا، پریزنٹ اینڈ فیوچر بھی بنایا تھا، اس کے پیسو وائز بھی بنائے تھے، اس کے علاوہ سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹس بھی بنائے تھے، ان کے جو ہے جمع اور ساری چیزیں فیمینین کے ساتھ۔ اب جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اردو میں تو جو ہے وربس ہوتے ہیں نا، ان کی جو ہے خاص شکلیں ہوتی ہیں، ان کے اینڈ میں نا لگتا ہے، کھانا پینا سونا کام کرنا، ٹھیک ہے، سب میں نا ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ورب کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انگلش میں اور عربی میں کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو پہلی دو کلاسز میں ورب پڑھے تھے ان کے جو ہے کوئی خاص شکلیں نہیں تھی۔ تو آپ کو جب بھی قرآن پاک میں ضرب کی شکل ملے تو آپ نے جو ہے ضرب کے حساب سے جو ہے جو آپ نے پاسٹ اینڈ پریزنٹ اینڈ پیسو وغیرہ سیکھے تھے، ان کے ضرب کے سبجیکٹس اور آبجیکٹس سیکھے تھے، وہ آپ نے اپلائی کرنے ہیں۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہوں گی، اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ خاص شکلیں نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وربس کی عربی میں کچھ شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ساری جو ہے خاص شکلیں نہیں ہوتی، لیکن کچھ جو ہے پرٹیکولر شیپس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں یاد رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے آج ہم ایک شکل پڑھیں گے ورب کی، اور اس کے جو ہے سارے یہ جو ہم نے دو کلاسز میں سیکھے تھے نا، پاسٹ پریزنٹ پیسوز اور سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹس، تو وہ سب جو ہے ہم اس شکل کے سیکھیں گے۔ تو قرآن میں آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا، آپ نے اس شکل کے جتنے بھی ورڈز ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تو میں بات کر رہی ہوں افتعال۔ افتعال، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک فعل کی ایک خاص شکل ہے، افتعال، افتعال یا افتعال۔ اب جو ہے ہم اس شکل کے جو ہے جتنے بھی وربس دیکھیں گے نا، میں ابھی آپ کو کچھ وربس بتاؤں گی، کچھ ورڈس بتاؤں گی میننگ کے ساتھ، تو ہے آپ قرآن میں خود ہی سمجھ جائیں گے اور آپ کو جو ہے اس کی میننگ خود ہی پتا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کے لیے بالکل ایزی ہے عربی سیکھنا، کیونکہ اردو کے کافی 90% مور دین 90% ورڈز جو ہیں عربی میں یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس شکل کو پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور شکل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انفعال، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اسی ٹائپ کی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم قرآن کی گرامر سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اتنا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو ہے دونوں کو ملا لیتے ہیں، ان دونوں شیپس کو، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کی، کیونکہ جو ہے سبجیکٹ آبجیکٹ سب ایک جیسے بنتے ہیں، افتعال اور انفعال، ٹھیک ہے نا؟ انفعال اور افتعال۔ آج جو ہے ہم اس ٹائپ کے ورڈز پڑھیں گے، میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گی، آپ کے بھی جو سمجھ میں آئیں گے آپ مجھے بتاتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک ورڈ کر لیتے ہیں، اکتساب۔ اکتساب کی میننگ آپ کو پتا ہوگی، کسب سے نکلا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کمانا، ٹھیک ہے؟ اکتساب، اس کی میننگ ہوتی ہے کمانا، یہ ورب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا افتعال کی شکل میں سارے وربس آج ہم پڑھیں گے۔ افتعال سے نکلا ہے یا انفعال، دیکھ لیں، الف پہ زیر، دوسرا والا ساکن، تیسرا والا تا کے ساتھ ساکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب تا زیر والا، تا نہ بھی ہو کیونکہ انفعال یہاں پر تا نہیں ہے لیکن یہاں پر زیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیسرے پہ زیر ہوگی، چوتھا یہ الف مدا کے ساتھ ہوگا، دین لاسٹ میں
टू पेश में हम साकिन लगा देते हैं। तो इस टाइप की जो भी शक्लें होंगी उसका जो है इसी शेप में आपने समझ जाना है। अच्छा, इसकी मीनिंग होती है कमाना। अब इसके जो टाइप के आपको जितने भी वर्ड्स याद आए मुझे आप बताते जाएं, मैं लिखती जाऊंगी। कुछ मैं खुद बता रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल इजी आपको एग्जांपल दूं, एतिकाफ। एतिकाफ। एतिकाफ का क्या मतलब होता है? एतिकाफ में जो बैठते हैं ना लोग, एतिकाफ मतलब बैठ जाना, आप खुद को बाउंड कर लेते हैं। तो एतिकाफ का मतलब होता है किसी जगह पर बैठ जाना, ठीक है ना, जाना, दैट इज वर्ब। अब किसी जगह पे बैठ जाना ये एतिकाफ हो गया। अगर इसकी और वर्ड्स ले लें, एहतिसाब। एहतिसाब होता है ना, अंदाजा लगाएं, हिसाब से निकला है, ठीक है ना, हिसाब किताब करना। तो इसका क्या मतलब है? हिसाब किताब करना, एहतिसाब। ये भी हो गया वर्ब। इसी टाइप के अगर और वर्ड्स देख लें, इज्तिमा। इज्तिमा, इज्तिमा, ठीक है ना, इज्तिमा में जाते हैं ना, कहते हैं जमा होना, इज्तिमा। इज्तिमा का मतलब है जमा होना। इंतिशार, इंतकाल, इंतखाब, ठीक है ना, इंतखाब, किसी को मुंतखब कर लेते हैं। इंतिशार यानी फैलाने को कहते हैं ना, फैलाना, इंतिशार, ठीक है। इंतकाल, अगर इंतकाल को हम देख लें, किससे निकला है? नकल से। एग्जाम्स में नकल करते होंगे ना, सब ने की होगी, कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने नकल नहीं की थी। बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में सब ने नकल की होती है। तो नकल करने का क्या मतलब होता है? एक से यहाँ से देख के वहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से वहां मुंतकिल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है मुंतकिल होना, या किसी का इन्ना लिल्लाह हो जाता है ना, वो वाला इंतकाल, इसका इन्ना लिल्लाह हो गया, ठीक है ना। इंतकाल मतलब मुंतकिल होना। इंकलाब, ठीक है। ऐसे काफी वर्ड्स हो जाते हैं। तो हम जो है डायरेक्ट अब इनके जो है सेकंड इसका टॉपिक जो हो जाएगा करेंगे। अब इन इसी वर्ब जो है ना, इफ्तिआल की शेप के हम पास्ट टेंस कर लेंगे, कि अगर इस टाइप के शेप आएंगे तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा। जैसे जरबा था ना पास्ट, वैसे ही अब इक्तिसाब का अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, जो ये वर्ब है ना इफ्तिआल, उसके यहाँ आने चाहिए। अगर हम इक्तिसाब को ले लेते हैं, पहले मैं इक्तिसाब लिख लूं। आप जो है बस पीछे वाली 2 क्लासेस याद कर लें, आपको ना सारे ये इजी बच्चों का खेल लगेगा। अरबी सीखना आपको ना बच्चों का काम लगेगा, अगर आपने पहली वाली 2 क्लासेस ध्यान के साथ सुनी होंगी तो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं। अभी बस हम जो है वर्ब चेंज करके उसकी पढ़ते जाएंगे, उसके सारे ये पास्ट प्रेजेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमने कवर कर लिए थे, जो हमने पहली 2 क्लासेस में सीख लिया था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ही हम जरबा की शक्ल में ले आए, पास्ट में ले आए, तो कैसे होगा? ये सारे आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जरब से बन जाएगा इक्तसब। एक सेम इक्तसब। कितना इजी हो गया देखें, इक्तसब। इसका क्या मतलब है? उसने कमाया। कब कमाया? गुजरे हुए जमाने में, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस का क्या शेप निकल आया? इक्तसब। अब जो जो वर्ड्स आज आपने पढ़े हैं सब पे यही शक्ल आ जाएगी। देखें कितना इजी होगा। इफ्तिआल और इन्फिआल की शक्लें आपको समझ आ गई कि उसका पास्ट टेंस कैसे बनता है। इक्तसब, कमाया उस एक शख्स ने गुजरे हुए जमाने में, ठीक है। इक्तसब। अगर हम जो आज जो दूसरे वर्ड्स पढ़े थे उनको ले लेते हैं। कौन से वर्ड्स थे? एहतिसाब। एहतिसाब का मतलब था ना हिसाब करना, एहतिसाब से बन जाएगा इहतसब। बस सब में ऐसे लगाते जाएं, आपकी जो है माजी बन गया। एहतिसाब हिसाब करना था, अब एहतसब क्या हो गया? उसने हिसाब किताब किया, कब? गुजरे हुए जमाने में, ठीक है। एहतसब। दूसरा अगर एतिकाफ ले लें तो क्या होगा? एतकफ, ठीक है ना। एतिकाफ्ड, ही एतिकाफ्ड, दैट मीन्स उसने गुजरे हुए जमाने में एतिकाफ किया। तकफ, ठीक है, एतिकफ।
एतिकाफ का हो गया एतकफ। उसके अलावा अगर कोई वर्ड ले लेते हैं, इंतिखाब, इंतखब, इंतखब, ठीक है। इंतिशार से इंतशर, सबकी मीनिंग आपको पता है। इंतखाब होता है, उसका इंतखाब किया गया कब? गुजरे हुए जमाने में। इंतशर फैलने को कहते हैं ना, तो क्या हुआ? गुजरे हुए जमाने में फैल गई। क्या फैल गई? जाहिर सी बात है, इसकी हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या फैल गई? खबर फैल गई। तो फैल गई कब? गुजरे हुए जमाने में। इंकलाब, इंकलाब होता है ना, इंकलाब क्या होता है? उलटने को कहते हैं, उलटना। इंकलाब आ गया, सब कुछ उलट पुलट गया, ठीक है ना, वो वाला इंकलाब आ गया। तो इंकलाब जब आ गया क्या होगा? इनकलब, पास्ट में इनकलब मतलब उलट गई, इनकलब। अगर आगे इसका सब्जेक्ट लगा लेंगे तो वो पता चल जाएगा क्या उलट गई, ठीक है। अभी जो है हम सिर्फ पास्ट की बात करें, इनकलब, इंकलाब आ गया। अच्छा, इंतजज, ठीक है, इंतजाज से निकला है ना। इंतजाज का क्या मतलब होता है? मिलना। अब इंतजाज से इंतजज। बस आपको मैं ज्यादा नहीं बता रही, आप माशाल्लाह से खुद ही इतने क्लेवर हैं कि आप सबके जो इस टाइप के पास्ट टेंसेस बना लेंगे। इंतजज है, ठीक है, इंतजज हो गया। एहतिमाल से एहतमल, इंतकाल से इंतकल, इंतजार से इंतजर, ठीक है। इंतजार होता है ना, किसी का इंतजार करते हैं, तो इंतजर हो गया, उसने इंतजार किया, ठीक है, इंतजर। चलिए, आई थिंक पास्ट टेंस के लिए इतने काफी हो गए। अब इन सब के जो है हम पैसिव बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर जो लिखे हुए हैं इन्हीं को जो है उलट पुलट कर दूंगी तो आपके पैसिव बन जाएंगे। पैसिव का होता है ना, उलट उलट जाते हैं ना, बस जबर जेर पेश को हम इसके यहाँ से वहां कर देते हैं। जैसे हमने पहली 2 लेक्चर्स में पढ़े थे ना, जरा बस जुरिब बन गया था। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक तसब से उक्तुसिब, ठीक है, उक्तुसिब। इहतसब से उहतुसिब, ठीक है। सिर्फ जबर जेर को आप इधर से उधर कर देंगे तो ये बन जाएगा पैसिव वाइस। दैट मीन्स अगर हम एक तसब को ही ले लेते हैं, एक तसब से बन गया उक्तुसिब। एक तसब का मतलब है कमाया उसने, अब उक्तुसिब का मतलब है कमाया गया वो। अच्छा, मैं लिख लेती हूँ, आपको जो इजी रह जाएगा। यहाँ पर एक्टिव लिख लेते हैं कुछ, यहाँ पर पैसिव लिख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो मैं एक दो यहाँ पर शेप लिख लूंगी ना, तो आप इनको देख के सारे खुद ही बना सकते हैं। इक्तिसाब को हम लेके चल रहे हैं, तो इक्तसब, इक्तसब का क्या मतलब था? उसने कमाया गुजरे हुए जमाने में। अब इसका पैसिव बन जाएगा उक्तुसिब। अच्छा, पैसिव का आप ना यही शेप अप्लाई होगा सब पे, उक्तुसिब। पहले पेश दे दिया, यहाँ पर भी पेश दे दिया, यहाँ पर जेर, लास्ट में जबर आ जाएगी, ठीक है, उक्तुसिब। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं तो ए तकफ से ओ तुकिफा, ठीक है, ए तकफा, ए तकफ से ओ तुकिफा। याद ना भी हो तो आप पहले वाले को देख के सारे खुद ही बना सकते हैं। उक ओ तुकिफा, ठीक है। अगर एक और मैं लिख लूं यहाँ पर, इंतजार को ले लेते हैं, इंतजर, उसने इंतजार किया गुजरे हुए जमाने में, इंतजर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? उनतुजिर, इंतजार किया गया, ठीक है, उनतुजिर, उसने किया, अब यहाँ पर किया गया, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बन गया। कुछ और हम वर्बली पढ़ लेते हैं। इंतकल से उनतुकिला, ठीक है, इंतकल क्या क्या मतलब है? मुंतकिल हुआ। अब उनतुकिला से मुंतकिल किया गया, ठीक है। इहतसब से उहतुसिब, उसने हिसाब लिया, अब उहतुसिब का मतलब है हिसाब लिया गया। कोई और कर लेते हैं। इहतरक, इहतरक का क्या मतलब होता है? जल गई, ठीक है, इहतराक से निकला है। इहतरक से उहतुरिक,
अब इक्तिराब से, इक्तिराब का क्या मतलब होता है? करीब होना। इक्तरब, करीब हुई। उक्तुरिब, ठीक है, इक्तरब से उक्तुरिब। इंतजाज मिलने को कहते हैं इंतजज। इंतजज का मतलब है वो चीज मिल गई। इंतजज से उनतुजिज, ठीक है। एक्टिव से सारे ऐसे ही पैसिव बनते जाएंगे। एक्टिव से पैसिव का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया पास्ट टेंसेस का। अब अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर पे आ जाते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर पे, ठीक है, इक्तिसाब को ही लेके चलते हैं। इक्तिसाब से इक्तसब था पास्ट, उसका क्या था? पैसिव क्या था? उक्तुसिब। अब जो है इक्तसब से यक्तसिब, जैसे यजरिब था ना, सिमिलरली यक्तसिब। अब ये यक्तसिब इक्तिसाब का जो है प्रेजेंट टेंस है, यक्तसिब, ठीक है। अब इक्तसब था, उसने कमाया। अब यक्तसिब का क्या मतलब है? वो कमाता है या कमाएगा। सब ये जो चीज चल रही है आपके पहले दो लेक्चर्स को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सारे वही चीजें हैं जो आप सीख चुके हैं, बस जो यहाँ पर जो है वर्ब्स की शक्लें चेंज हो रही है। तो आपने सिर्फ ये शक्लें याद करते जाना है, बाकी तो आपने सब कुछ जो है तकरीबन जो चीजें हैं आपने दो लेक्चर्स में सीखी हैं, अब सारी वो अप्लाई होती जाएंगी। और सब ये 8 लेक्चर्स ही मिला के आपको मैं कुरान में अप्लाई करके दिखाती जाऊंगी। यक्तसिब से वो कमाता है या कमाएगा, ठीक है। कमाता है प्रेजेंट की बात हो रही है, या फिर कमाएगा कब? फ्यूचर में। यक्तसिब। चलें जी, अब जो है सारे जो हमने वर्ड्स कर लिए थे, अब सब की आपने प्रेजेंट या फ्यूचर शक्ल बनानी है। यक्तसिब हो गया। एतिकाफ का यअतकिफ, ठीक है ना। एतकफ पढ़ा ना हमने, एतकफ, उसका क्या होगा? यअतकिफ। यअतकिफ, यअतकिफ का क्या मतलब है? वो एतिकाफ करता है या करेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं। इंतकाल से इंतकल। अब इंतकल से यंतकिल, यंतकिल, ठीक है। यंतकिल का क्या मतलब है? वो मुंतकिल होता है या होगा। इहतिसाब से इहतसब, इहतसब से यहतसिब, ठीक है। यहतसिब वो हिसाब करता है, ठीक है ना, हिसाब लेता है। यहतसिब, सब पे यही शेप अप्लाई होगा और हमारा जो है प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। इफ्तिआल के शेप पे अब जो है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यहतसिब। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, वर्बली मैं आपको बताती जाती हूँ, आप लिखते जाएं। यहतसिब भी हो गया। अगर हम इहतिमाल को ले लेते हैं, इहतिमाल से यहतमिलु, ठीक है। यहतमिलु से इहतमल से यहतमिलु, ठीक है। इहतमल था पास्ट की बात हो रही है, यहतमिलु प्रेजेंट की बात हो रही है। इंतिशार से था इंतशर, ठीक है। इंतशर से यंतशिरु, ठीक है, यंतशिरु। यंतशिरु, फैलती है या फैलेगी, यंतशिरु। इंकलाब से था इनकलब, इनकलब से है यनकलिब, यनकलिब, ठीक है, वो उलटती है या उल्टेगी। इंतजाज से था इंतजज, इंतजज से है यंतजिज, यंतजिज मतलब है वो चीज मिलती है, यंतजिज। अच्छा, मीनिंग साथ में आप याद करते जाएंगे। वैसे तो ये बिल्कुल इजी मीनिंग्स है, आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप ये साथ साथ लिखते जाएंगे विद मीनिंग, तो आप बस एक बार वो पेज जिसपे लिखा होगा ना उसको पढ़ेंगे तो आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बस नोट्स बना लेने हैं, उस पे जो है ऐसे आपने लाइंस बना के इस साइड एक्टिव इस साइड पैसिव, ठीक है ना। पहले पास्ट के आपने एक्टिव पैसिव लिख लेने हैं ऐसे ही, फिर प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव लिख लेने हैं, फिर इसी टाइप के आपने एक लाइन बना के यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बना लेने हैं। आपको मसला ही हल हो जाएगा नोट्स बनाने में।
हम खुद ही ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब जो हो गया यंतजिज, यंतजिज के अलावा अगर एक तो और कर लेते हैं। इक्तराब का क्या मतलब था? करीब होना। इक्तरब करीब हुई, यक्तरिब वो करीब होती है या होगी, ठीक है। इंतजार से क्या था? इंतजरा, इंतजर से यंतजिरो, ठीक है। ये मैं खुद ही बना रही हूँ, कहीं पर देख नहीं रही, क्योंकि मुझे इंतजार आपको बस याद है तो उसका इंतजार, अगर आपको एक वर्ड आपकी नजर पड़ गई इस पे, ठीक है, इंतजार। अब आपको खुद ही पता होगा इसका क्या है, इंतजार का क्या है? पास्ट इंतजर, इंतजर से उन से यंतजिरो, ठीक है, यंतजिरो। अब यंतजर भी हो गया, ये है प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट के एक्टिव हमने पढ़े ना, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट से अब अगर हम पैसिव बना लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी आज थोड़ा इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप जो है वीडियो स्टॉप करके तो वैसे ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बार बार मुझे रिपीट करने की इसीलिए नीड नहीं है, क्योंकि आपको जो समझना है तो आपको वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक करके अगेन देख सकते हैं। तो आप जो है ऐसे ही वीडियो को स्टॉप कर करके आप जो है नोट्स बना सकते हैं। अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं बार बार यही बता रही हूँ, सिर्फ वो 2 लेक्चर्स लेंगे तो आपका आधा मसला अरबी का हल हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें उसी से कनेक्टेड हैं। चले जी, अब जो है प्रेजेंट पे चल रहे हैं, तो प्रेजेंट हमने सीख लिया है। प्रेजेंट क्या था? यक्तसिब, ठीक है ना। इक्तिसाब को लेके चल रहे हैं, यक्तसिब। यक्तसिब, ठीक है। ये जैसे अगर आपको याद हो, यजरब से क्या था? युजरब, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़ा था, जरब से जुरब, यजरब से युजरब। अब यक्तसिब से क्या? युक्तसब, ठीक है, युक्तसब। 2 पहले और आखिर में पेश होगा, बाकी जो है सेकंड वाला तो साकिन ही होता है, बाकी जबर होंगे। पहला और आखिरी पेज, बाकी वाले दोनों जबर होंगे, बाकी ये जो साकिन जो है साकिन ही रहता है। युक्तसब, ठीक है, युक्तसब। युक्तसब कितना इजीली मैंने आपको याद करवा लिया। पहले और आखिरी पे आपने पहले जो है यक्तसिब ही लिख लेंगे विदाउट सैम्बल्स, फिर आप क्या करेंगे? पहले और आखिरी पे पेश लगा देंगे, बाकी वालों पे जबर लगा लेंगे। बाकी काफ तो साकिन तो है, साकिन ही रहता है। यक्तसिब से बन जाएगा युक्तसब, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है सब पे आप अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे? यक्तसिब के अलावा अगर कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहतसिब, ठीक है, एहतिसाब वाला यहतसिब, यहतसिब। अगर हमने इसका पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहतसिब को ही लिख लेंगे, पहले पेज लास्ट में पेज, दोनों पे जबर, यहाँ पर साकिन, युहतसब, ठीक है। कितना इजीली आपको मैंने समझा दिया कि प्रेजेंट का आपने पैसिव कैसे बनाना है, इफ्तिआल के शेप का, ठीक है। इक्तिसाब चल रहा है यहाँ पर। अब इख्तिसाब हमने लिख लिया, उसके अलावा अगर हम कर लें इंतकाल कर लें। इंतकाल का क्या था? यंतकिलो, ठीक है। इंतकाल से इंतकल था, इंतकल से उन तुकिल था, इंतकल से उन तुकिल था, यंतकिलो से युनतकलो, ठीक है। यंतकलो से क्या मैंने बताया? युनतकलो। कितना इजी हो गया, युनतकलो। आपको खुद ये बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुरान में जब ये शेप्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। युनतकलो हो गया। ये यक्तसिब का क्या मतलब होता है? वो कमाएगा, वो कमाता है या कमाएगा। अब युक्तसब से क्या मतलब हो गया? पैसे वो कमाया जाता है या कमाया जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव से पैसे ऐसे बनते हैं। मीनिंग्स के साथ बता रही हूँ, साथ साथ मीनिंग भी लिखते जाएं। यहतसिब का क्या मतलब होता है? वो हिसाब करता है ना, उसने हिसाब लिया, जो एहतसब हो गया। अब यहतसिब का मतलब है वो हिसाब लेता है। अब युहतसब का मतलब होता है हिसाब लिया जाता है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बन गया।
वैसे ही वो मुंतकिल होता है, यंतकिलु का मतलब होता है, और युनतकिलु का मतलब होता है वो मुंतकिल किया जाता है, ठीक है, वो खुद होता है और यहाँ पर किया जाता है, एक्टिव से पैसिव बन गया। जैसे हो गया यहतसिबु से युहतसबु, हिसाब लेता है और हिसाब लिया जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम एक दो और वर्ड्स ले लेते हैं, इक्तराब हमने पढ़ा ना, करीब होना, उसका क्या होता है, यक्तरिब से युक्तरब। इंतजाज को ले लेते हैं यंतजिज से युनतजज, ठीक है। इनकलाब को ले लेते हैं यनकलिब से युनकलब, ठीक है। आई थिंक ये काफी हो गए। इम्तिहान, इम्तिहान भी आपने पढ़ा होता है ना, इम्तिहान देते हैं, जो इम्तिहान जो आप नकल करते हैं, अच्छा वो वाला इम्तिहान है। इम्तिहान से क्या होता है, इम्तिहान लेना होता है ना, इम्तिहान का जो उर्दू में मीनिंग होती है इम्तहन, इम्तिहान जो है उसने इम्तिहान लिया, इम्तहन। उम्तहिन, इम्तिहान लिया गया। यम्तहिन, इम्तिहान लेता है। युम्तहन, इम्तिहान लिया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। यम्तहिन से युम्तहन। आई थिंक दीज आर इनफ फॉर दी पैसिव फॉर द प्रेजेंट। अब हम जो है जल्दी से इनके सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स बना लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं। सब्जेक्ट्स बना लिए, बना लेंगे अभी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, इनका जो है इफ्तिआल में जो ना ज़रब का ज़ारिब था ना, अब इफ्तिआल में इसका जैसे इक्तिसाब था, इक्तिसाब इफ्तिआल की शक्ल है, नाम चल रही इक्तिसाब। अब इसकी जो फाइल बनेंगे वो ज़ारिब की शक्ल पे, फाइल की शक्ल पे नहीं बनेंगे। इसके जो फाइल बनेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स जो बनेंगे उनकी शक्ल जो होगी इसकी प्रेजेंट में होगी। इक्तिसाब का हमने प्रेजेंट क्या पढ़ा था, यक्तसिब। अब यक्तसिब से क्या बन जाएगा, मुक्तसिबुन, ठीक है। इसका सब्जेक्ट बनेगा, इसी की शेप को आप लेके चलेंगे, मुक्तसिब, ठीक है, मुक्तसिब। मुक्तसिब का मतलब क्या है, कमाने वाला, ठीक है। यक्तसिब से मुक्तसिब, कमाने वाला। हम इसको क्या है, ज़ारिब की शक्ल पे हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना, कासिब नहीं पढ़ेंगे हम इसको, इसको पढ़ेंगे मुक्तसिब। अगर हम उर्दू की इजीएस्ट मिसाल ले लें जो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, मुंतजिर। मुंतजिर सुना होगा ना, मैं इसका मुंतजिर हूं। मुंतजिर किसको कहते हैं, इंतजार करने वाले को, इंतजार से निकला है। इंतजार देखें इफ्तिआल की शक्ल पे आ गया ना। अब इंतजार जो है इफ्तिआल की शक्ल पे आ गया। इंतजार मतलब इंतजार करना, इंतजार करना, उसने इंतजार किया, इंतजर, वो इंतजार करता है, यंतजिर। और इंतजार करने वाले को हम क्या कहेंगे, मुंतजिर, ठीक है, मुंतजिरुन या मुंतजिर। तो ये कितना देखें इजी हो गया। इफ्तिआल या इंतजार की शक्ल पे जो भी होंगे वो इस शक्ल के आपने बनाने हैं। मुंतजिर आपने बिल्कुल इजीली सुना होगा। जैसे मुंतकिल, इंतकाल का क्या है, मुंतकिल, सुना है ना, मुंतकिल, मुंतकिल होने वाला जो होता है मुंतकिल, ये भी इफ्तिआल की शक्ल पे है, इंतकाल की शक्ल पे है, ठीक है ना, मुंतकिल करने वाला, मुंतकिल। देखिए सब जो है आपने सुने हुए हैं, सब ये अरबी में भी उर्दू वाले ही यूज होते हैं। इहतिसाब से क्या बन जाएगा, मुहतसिब, ठीक है। अगर हम एक दो और ले लें, हाँ, इंतजाज से मुंतजिज, इंकलाब से मुनकलिब, इंतखाब से मुंतखिब, बोलते हैं ना मुंतखिब किया गया, वो मुंतखिब, मुंतखिब होने वाला, ठीक है। इंतजाज, इंतजार से मुंतजिज, इंतिशार से मुंतशिर, और हमने जो आखिर में पढ़ा था इम्तिहान, तो मुमतहिन, ठीक है, मुमतहिन होता है इम्तिहान जो लेते हैं ना, इम्तिहान लेने वाले को मुमतहिन कहते हैं। तो ये सारे हो गए फाइल, दैट मीन्स सब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा, अगर इन्हीं के जो है सब्जेक्ट्स के हम जो है वो बना लेंगे, क्या बनाते हैं, ज़ारिब का, जैसे ज़ारिबून हमने जमा बना लिए थे, ठीक है ना, तो इनके भी सेम वैसे ही आपने रून या रीन लगा देना है तो आपके जमा बन गए।
कोई इसमें कोई फारसी कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने सेम तरीके से आपने यहाँ पर भी सारे वही जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे ना, जमा के लिए और गर्ल बनाने के लिए, फेमिनाइन के लिए, वो सब जो आपने बनाए थे मुअन्निस के लिए, सब वही सिगे आपने अप्लाई करने हैं। यहाँ पर भी आपके जो है जमा और मुअन्निस बन जाएंगे। सही है। जैसे क्या था, मुंतजिर से मुंतजिरा हो गया तो वो बन जाएगी फीमेल वर्जन। ठीक है, मुंतजिर आदमी, मुंतजिरा। बस आपने जैसे उसमें जारिब से जारिबा बना दिया था, अब यहाँ पर भी सब में आपने गोल वाली ता लगा देनी है तो आपके मुअन्निस बन जाएंगे। रून या रीन लगानी है तो आपके जमा बन जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा क्लियर आपके लिए लिख लूं एक, मुक्तसिब, अब मुक्तसिब से मुक्तसिबून, मुक्तसिबून या मुक्तसिबीन। ठीक है, खुद ही आप लिखते जाएं, मुक्तसिब से मुक्तसिबून या मुक्तसिबीन। आप जो है कमाने वाली, मुक्तसिबा, सेम तरीके से सब वही है, बस आपने ध्यान से देखना है, मुक्तसिबा। ठीक है, आप कमाने वालियां, मुक्तसिबात, सेम वही चीज अप्लाई हो रही है सब पे, मुक्तसिबात। ठीक है, चलिए ये फाइल के हो गए। अब बस यही शेप आपने जो है ना सब पे अप्लाई करनी है। इसको मुझे आई थिंक पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको जो है डिटेल में पहली 2 क्लासेस में ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। इवन के पहली 2 क्लासेस में नहीं, सेकंड क्लास में ये सारी चीजें आपने सेकंड क्लास में पढ़ी है। अगर वो वाली वीडियो आपने देखनी है तो आपकी जो है पहली क्लास उसी में सेकंड वाली क्लास में कवर हो जाएगी। ठीक है ना, आपको पहली क्लास की देखने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर जो पढ़ाने की नियत कर रहे हैं तो उनको तो हर चीज डिटेल में पढ़नी चाहिए। तो आप जो है पहली दोनों क्लासेस देख ले। अगर कोई जल्दबाज है तो वो जो है सिर्फ सेकंड क्लास देख ले, उसका मसला हल हो जाएगा। अब जो आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, यहाँ पर इफ्तिआल की शेप की अब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स तो आपके लिए ना बच्चों का खेल है, बस आपने एक जबर लगानी है, वो सारा जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपको मैं सबसे जो है इजीएस्ट मिसाल से लेके चलूं तो वो होगी मुंतकिल। ठीक है, मुंतकिल क्या था, सब्जेक्ट, मुंतकिल। अच्छा, मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेती हूँ, इस साइड सब्जेक्ट्स, इस साइड ऑब्जेक्ट। जो आपको मैंने तरीका बताया था नोट्स बनाने का, नोट्स ऐसे ही बनते हैं, दोनों में डिफरेंस रखना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। मुंतकिल से बस एक जबर है, इसमें सारा मसला हल। मुंतकिल से मुंतकल, आपने बस यहाँ पर जबर लगानी है। ये जो जेर है ना लास्ट सेकंड लास्ट पे, उसको आपने जबर बना देना है, आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मुंतकिल क्या होता है, मुंतकिल करने वाला। अब जो है मुंतकिल हो रहा है, ठीक है ना, एक होता है मुंतकिल करने वाला, एक होता है नकल करने वाला, और दूसरा जो है मुंतकिल होने वाला। एक होता है करने वाला, दूसरा होने वाला। आपको मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम हो रहा हो। मुंतकिल है मुंतकिल होने वाला, मुंतकल है मुंतकिल होने वाला। ठीक है, वो करने वाला, वो होने वाला। अब इसी पे जो है आपको मैं सारे जो है बता देती हूँ। जो है मुक्तसिब से मुक्तसब, जैसे आपको मैंने बताया इसका इक्तिसाब को ही हम पहले लेके चल रहे थे ना, तो उसको हम आधे में नहीं छोड़ सकते, उसको जो है हर जगह पे लिखना पड़ेगा, मुक्तसिब। ठीक है ना, ऐसे छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, आधे में ना छोड़ा करें। अच्छा, तो हम जिसको लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलते हैं। मुक्तसिब से मुक्तसब, मुक्तसिब का मतलब है कमाने वाला। अब जो चीज कमाई जा रही है उसको हम क्या बोले, तो उसको हम बोलेंगे मुक्तसब। ठीक है, मुक्तसिब कमाने वाला, मुक्तसिब कमाने वाला, मुक्तसब जो चीज कमाई गई हो, ठीक है, उसको बोलेंगे मुक्तसब।
جیسے ہو گیا منتظر، انتظار کرنے والا. اب جس کا انتظار ہو رہا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم کہیں گے منتظر. کتنا ایزی ہو گیا سبجیکٹ سے آبجیکٹ. وہ ہے انتظار کرنے والا منتظر. اب جس کا انتظار ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے منتظر. ٹھیک ہے، منتظر ہے منتظر کا. ٹھیک ہے، وہی بات ہو گئی. انتظار کرنے والا منتظر، اب انتظار ہو رہا ہے جس کا اس کو منتظر. اب امتحان لینے والا تھا ممتحن، اب جس کا امتحان لیا جا رہا اس کو کہیں گے ممتحن. ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہو گیا ممتحن سے ممتحن. اعتکاف جو کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے معتکف. اب جہاں پر ہو رہا ہو معتکف. ٹھیک ہے، ویسے ہی منقلب الٹنے والا. اب الٹایا جو چیز الٹائی جا رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منقلب. منتشر سے منتشر. ٹھیک ہے، یہ سارے ہو گئے آبجیکٹس. اب انہی آبجیکٹس پہ آپ نے سیم چیز جمع اور مؤنث کے لیے اپلائی کر لینی ہے. وہ کیا ہے؟ منتقل سے منتقلون. ٹھیک ہے، دونوں پہ. یہاں پر منتقل سے منتقلون یا منتقلین، یہاں پر منتقلون یا منتقلین. منتقلہ ہو گئی فیمیل، منتقلہ ہو گیا فیمیل ورژن. مکتسبہ ہو گئی فیمیل ورژن، مکتسبہ ہو گیا فیمیل ورژن. مکتسبات ہو گئی فیمیل بہت ساری، مکتسبات ہو گئی فیمیل بہت ساری. آئی ہوپ یہ ٹاپک بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اب جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.